हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। करीना कपूर को क्या है शाहरुख की वाइफ गौरी से शिकायत, जूम पर खुद रिवील करेंगी करीना। अक्षय कुमार फिर बनेंगे खिलाड़ी। संजय लीला भंसाली ने होल्ड किए अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट, माय फ्रेंड पिंटो के रिस्पॉन्स से नहीं है खुश। रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा करेंगे रोमांस, लेकिन रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में। और बापी दा के साथ मनाएंगे धनतेरस का त्योहार। करीना कपूर को शिकायत है शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान से। करीना से फ्रेंडशिप भूलकर गौरी ने किया उन्हें कैजुअली ट्वीट। रावण के सेट पर किस बात से हुई करीना परेशान, आप भी सुनिए। Hi, this is Madhurita, and with me is Bollywood's finest actress and Bollywood's hot new chamak chalo, Kareena Kapoor. Welcome, Kareena. Hi. So you had one very big hit with the Khan, and many more to follow. How do you feel? Well, I just feel that I'm lucky, or I don't know what it is, but it's great to know that my own films are competing with my own. So I hope that Ravan also goes on to become a super duper hit. So you're really competing with yourself, huh? I think my films are, and yeah, but I don't know. I mean, all these things slightly unnerve me also, and like they put too much pressure, so I get really stressed out. Ravan is also your most expensive film to date, so there's a lot riding on it. Well, I think it's just one man's dream kind of thing. A lot of people say that, this is my dream and this is what I want to do, and how many people actually live it and do it. And I think Shahrukh is one of them who's, I think he's just taken it to another level, whether in terms of just the fact of having to have lived this whole thing and actually been there for these 200 days and make it happen, Right. and bring it to the audiences. I think that bravery and courage is something that, I just want to salute Shahrukh for. In fact, you told us earlier that when you're working with the Khans, you could just sit pretty and sing and everything's taken care of. Exactly. I mean, I think that's what I told Shahrukh. I said that, listen, in this movie, I don't want to do any stunts. I know you're making a superhero film, but don't hang me from some 30-floor building. Don't make me jump on cars and do all that, because it's not my scene. I don't like to, I'm not comfortable doing action. I like the whole song and dance feel and, to look good. You do that brilliantly. So he was just like, don't worry, I'm going to give you the biggest hit song and you're going to look extremely glamorous. You're happy with the way it's shaped up. Yeah, and I think he was true with his words, because when I heard Chamak Chalo, I was just like so excited. I said, listen, we have to kill the song. And I think we worked really hard for it, because we were on time, on set, we were concentrating in terms of food and exercise, and we worked out the look and the choreography we rehearsed. So the whole idea was that we should kill this song, otherwise there's no point. Right. We both had that spirit. In fact, in press conferences, whenever you were missing, people asked Shahrukh, like, where is Kareena? He's like, main hu na. And also, I couldn't be there with Shahrukh at all times, because I was busy with Karan's film. Right. And Saif's father passed away, Right. so all our schedules went haywire. So Right. everybody's dates got, absolutely went for a toss for like 10 days. So because of that, obviously I called up Shahrukh and I said I won't be able to come, and he was very kind. He was like, listen, don't worry, and you do what you can here, because at such a time it was really not the right time for me to go out. So Imran was also telling us that while working with Kareena, I mean, first he's in awe of you, but he's like, there's this wall around her which is very tough to break, but once that happens, she's really easy. No, he's managed to do that, and he's a lovely guy, and I'm very, very fond of Imran, and he's just so real, and what I love about him is that he's just like so unlike a film star and an actor, and I am slightly reserved as a person on set. I'm not very friendly, because I think I'm always doing something or the other. But with Imran, it's always a pleasure to talk to him and listen to him, and we laugh, and it's been a
and he's been so sweet and kind to me. So I'm very fond of him, and I hope he just escalates and becomes like a huge star. A lot was said because you were not part of the Toronto premiere, and they said that you're probably working with Amir and you're giving a preference to that film over this. But actually, I'm not going to Toronto because my Madame Tussauds statue is unveiling on the same day. Wow. So I also called up Shah Rukh and told him that, and he was just like, it's perfect that it's happening because it's Ravan is just released and it's Diwali and your statue at the same time. He said that it's just perfect, and he was like, I'm just going to Toronto for 4 hours. I'm just going to attend the premiere and come back. I just need you in Dubai and London. Right. Wow. Now, you're one person who's not just a favorite of all the Khans, you really work with them and your films have worked. But that also makes it kind of tricky, right? Because whenever you're working with one, the focus is on that particular Khan. And the media says, okay, fine, she's in this Khan camp or that Khan camp. So what do you say to all of that? I think I've always said that I'm in my own camp. I'm in nobody's camp. I'm friendly with everyone, but I'm here to work with everyone and whoever wants to work with me. So I have a professional equation, and I give my 100% to every film that I do, and with extreme amount of passion. So I'm not here to get into anybody's personal space and personal problems and start discussing all that. I've never done that, and I never will. And I think that's the best way to survive in this industry. And Shah Rukh, can you go back a long way because they all work with charisma, and that connect is always there. In fact, all of them have. Salman, Amir, Shah Rukh, all of them. But of course, Shah Rukh is a dear friend of both Saif and me, and Gauri and me are very, very friendly, and she's like a sister to me. So of course it's like working with them is also special because they are like family in some way. And I hope this film, of course, because she's my producer, and today's the first time I actually see her as an active producer around her house when I'm giving interviews, and she was treating me like an actress. Normally she's always treated me like Bebo the child. So it's wonderful to be a part of their home always. Thank you so much, Corinne. It was a pleasure, and wish you all the luck. Thank you. अक्षय कुमार को लगता है कि उनकी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म से समझ आ गया है कि अब उनकी कॉमेडी सिल्वर स्क्रीन पर काम नहीं करने वाली। इसीलिए वो अब फिर से बनने जा रहे हैं खिलाड़ी। कब, कहां और कैसे? We have all the details in our next story. ईयर 2007 में बैक टू बैक 4 हिट फिल्म्स देने के बाद अक्षय कुमार को अब तक फेस करनी पड़ रही है बैक टू बैक फ्लॉप्स। So now he has come back with his old hit formula, और ये फॉर्मूला है खिलाड़ी। जी हाँ, बॉलीवुड में खतरों के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार एक बार फिर से खिलाड़ी अवतार में नजर आएंगे। खबर डिटेल में कुछ इस तरह है। दरअसल अक्षय कुमार हिमेश रेशमिया के साथ मिलकर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा खिलाड़ी 786 मेड इन पंजाब। इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर दिवाली में रिलीज किया जाएगा। फिल्म वैसे तो एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसमें अक्षय के एक्शन सीन सिल्वर स्क्रीन पर ऑडियंस को देखने को भी मिलेंगे। इस खबर के बाद इतना तो क्लियर हो गया है कि अक्षय ये बात समझ गए हैं कि उनकी सिर्फ कॉमेडी सिल्वर स्क्रीन पर नहीं चलने वाली। इसीलिए अपनी अपकमिंग फिल्म में या तो वो पुलिस वाले बन रहे हैं जैसे राउडी राठौड़, या फिर बन रहे हैं खिलाड़ी। अक्षय के ऑपोजिट इस फिल्म में कौन सी हीरोइन होगी, इस बात का तो अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन हाँ, फिल्म के कुछ स्पेशल रोल्स के लिए अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को भी कास्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब इतना कहा जा सकता है कि नेक्स्ट दिवाली अक्षय खिलाड़ी बनकर एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस का खेल खेलने के लिए तैयार हैं। रणवीर सिंह के साथ डेट करने से नो बोलने वाली सोनाक्षी सिन्हा ने उनके साथ फिल्म करने के लिए हाँ कर दी है। फुल डिटेल्स कमिंग अप नेक्स्ट। खबर सुनने से पहले जरा आप सोनाक्षी सिन्हा की इस बात को सुन लीजिए, जो उन्होंने रणवीर सिंह के डेट ऑफर के लिए कही थी। We were interviewing Ranveer Singh once, and he said he would be very soon asking you out on a date. So, what will be your reaction to that? Did he? Oh my God, no! I shall have a word with him and tell him not to say these things in public. रणवीर के साथ डेट ना करने वाली सोनाक्षी ने रियल लाइफ में तो नहीं, लेकिन रियल लाइफ में लव इंटरेस्ट बनाने के लिए हाँ कर दी है। दरअसल फिल्म उड़ान के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोल्ट्रा ने एक रोमांटिक थ्रिलर बनाने जा रहे हैं, और इस फिल्म में वो रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट कर रहे हैं। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर विकास बहल, अनुराग काश्यप, मधु मंतेना होंगे। सोर्सेज ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग दिसंबर में शुरू होगी, और इस फिल्म के लिए सोनाक्षी और रणवीर दोनों ने हाँ भी कर दी है। वैसे करण जौहर के एक स्पेशल इवेंट पे जब रणवीर और सोनाक्षी आए थे, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्म करने की ख्वाहिश जरूर जताई थी। Yeah, I would love to work with Sonakshi. She's a brilliant performer. I hope we land up,
working together. Of course. फिल्म करना चाहूँगी, of course. अब बात तो हुई है, but I think he is also very busy with his projects and मेरा भी lineup of films already हो चुका है, तो I think वो opportunity अभी तक मिली नहीं. बस अब हमें तो सिर्फ अनुष्का की ही टेंशन है, because according to rumors, अनुष्का does not like रणवीर की सोनाक्षी से नजदीकियां. संजय लीला भंसाली नहीं है खुश अपनी फिल्म माय फ्रेंड पिंटो से और इसीलिए अब उन्होंने अपनी सभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स को फिलहाल रोक दिया है. फुल डिटेल्स ऑन दिस कमिंग अप नेक्स्ट. माय फ्रेंड पिंटो के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद संजय लीला भंसाली हो गए हैं काफी नर्वस. इसीलिए उन्होंने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डाल दिया है होल्ड पर. संजय जल्द ही फराह खान और अदनान सामी को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे जिसकी शूटिंग अब तक स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन संजय ने फिल्म को इस साल के एंड तक पोस्टपोन कर दिया है. सोर्सेज की माने तो संजय लीला भंसाली के इस डिसीजन के पीछे वजह है उनकी माय फ्रेंड पिंटो. माय फ्रेंड पिंटो को संजय ने बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट के साथ बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी फिल्म नहीं चली. इसीलिए संजय अब अपने प्रोजेक्ट पर दोबारा सोच रहे हैं. खामोशी, ब्लैक, हम दिल दे चुके सनम और देवदास जैसी कई हिट फिल्में बना चुके संजय की 2007 में आई सावरिया और उसके 3 साल बाद 2010 में आई गुजारिश भी कुछ खास नहीं कर पाई. और अब माय फ्रेंड पिंटो की अनसक्सेस के बाद संजय लीला भंसाली बहुत सोच समझ कर ही किसी फिल्म को शुरू करना चाहते हैं. प्लेयर्स के सेट पर बिपाशा की एक हरकत से सब हो गए परेशान. इतने परेशान कि अभिषेक और सोनम को तो छुपना भी पड़ा. क्या थी बिपाशा की ये हरकत, चलिए देखते हैं. अभिषेक, नील नितिन मुकेश और सोनम कपूर कर रहे हैं बिपाशा बासु को अवॉइड ऑन द सेट्स ऑफ प्लेयर्स. नो, इन को-स्टार्स के बीच में कोई लव लॉस नहीं है, बस थोड़ा हाइड एंड सीक चल रहा है. एंड बिप्स के को-स्टार्स की उनसे छुपने की वजह है बिपाशा की नई हॉबी. रिसेंटली बिपाशा की एक फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट की पहेलियों मतलब रिडल्स की एक बुक एंड सॉल्विंग रिडल्स हैज बिकम बिपाशा's न्यू हॉबी. बट बात वहाँ तक रहती तो चलता, लेकिन बिपाशा ऑल्सो कैचेस हर को-स्टार्स एंड टेल्स देम टू सॉल्व द रिडल्स टू. वेल, सुनने में तो यहाँ तक आया है दैट बिपाशा इज सो स्ट्रिक्ट कि वो नहीं देती है एक भी हिंट इवन फॉर द डिफिकल्ट वंस. रूमर तो ये भी है दैट बिपाशा की पहेली पूछने की आदत बंद करने के लिए सोनम ने शेयर किए अपनी प्लेलिस्ट के सॉन्ग्स बिपाशा से, ये सोचकर कि म्यूजिक कर देगा बिपाशा का माइंड डाइवर्ट. वही अभिषेक ट्राई टू ल्योर हर इनटू सुडोकू टू कीप हर बिजी, बट बिप्स बेबी तो पहेली पूछना बंद ही नहीं कर रही हैं. हमारे सोर्सेज ने तो ये भी रिवील किया है कि बिपाशा की इस हॉबी से परेशान नील ने ये आखिर कह दिया कि बिपाशा के लिए कोई अच्छा लड़का देख लेना चाहिए ताकि वो अपनी इस पहेली बुझाने की जगह अपने व्यू के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे. वेल नील, आपकी इस बात से हम भी अग्री करते हैं एंड वी होप इवन बिपाशा अग्रीज विद द सेम. अभी रावण का प्रमोशन खत्म भी नहीं हुआ कि शाहरुख ने एक नए अंदाज में डॉन 2 का प्रमोशन शुरू भी कर दिया है. क्या है ये अनोखा प्रमोशन? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. जिस डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढती फिर रही है, अब आप उस डॉन को पकड़ सकते हैं कॉमिक बुक में. जी हाँ, फिल्म का खतरनाक डॉन अब कॉमिक बुक के अंदर भी कमाल करेगा. वैसे तो फिल्म डॉन 2 को रिलीज होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन डॉन के सारे कारनामे आप पढ़ सकते हैं इस कॉमिक बुक में. और इस बुक का कवर लॉन्च हुआ मुंबई में. इस खास मौके पर नहीं पहुंचे शाहरुख खान और फरहान अख्तर भी आते आते रह गए तो भेज दिया अपना रिकॉर्डेड मैसेज. Hi, I'd like to just say that I'm really sorry that I couldn't be there today for the unveiling of the Dawn 2 graphic novel cover. Unfortunately, life had other surprises in store. But all the best to everybody there and hopefully you will like the cover and you'll enjoy the comic when you read it. इस बुक की खास बात ये है कि इस किताब में फिल्म की कहानी के साथ साथ डॉन के कैरेक्टर के बारे में भी काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा. वैसे ये भी फिल्म को प्रमोट करने का नायाब तरीका है. शाहरुख की फिल्म रावण दीपावली पर रिलीज हो रही है, उसके प्रमोशन में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है और लगता है कि अब उन्होंने डॉन 2 की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत वो इस कॉमिक बुक के साथ करना चाहते हैं. बापी दा बॉलीवुड में सिंगिंग से ज्यादा ज्वेलरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहां से वो खरीदते हैं इतनी सारी ज्वेलरीज? वेल, धनतेरस के मौके पर खुद जूम को बता रहे हैं बापी लहरी. धनतेरस का त्योहार है, लोग ज्वेलर्स के पास जाते हैं. मैं एक ऐसे आदमी के पास हूँ who knows everything about gold. He's almost like the Midas and everything he touches seems to be turning into gold. Hi Bapida. नमस्कार. So let's talk a little about your chains. ये जो चेन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है गणेश जी का. ये आपने जो है मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ. दिस इज माई फर्स्ट चेन गिवन माई मदर.
जख्मी जब कृष्ण भगवान जख्मी जब सुपर हिट हुआ मेरा 1974 में 75 में चलता है जिया मेरा, तो उसके बाद बस गणपति बाबा का ये धारण किया। फिर मेरा गले में बालाजी है, तो हमेशा मैं जाता हूँ तिरुपति, ये बालाजी को समर्पण करके आता हूँ, उनका ये बालाजी करके फिर से गले में डालता हूँ। प्लस हनुमान जी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। Only one thing is my wife is given me, B. This is my name, B. Great. आप जब शॉपिंग करने जाते हैं अपने इन ब्यूटीफुल चेन्स के लिए, आप किस तरह का आपको डिज़ाइंस पसंद होता है? Which shops do you go for? मैं नहीं जाते हम लोग मैं तो डिज़ाइन हम लोग दोनों मिलके बना लेते हैं, मिसेस लाइगर मैं। और मैं तो अभी प्रैक्टिकली जैसा ये डिज़ाइन है गोल्ड का, हम लोग सिल्वर में खरीदते हैं, उसमें गोल्ड का डिज़ाइन बना लेते हैं। दिवाली आ रहा है, तो हाउ डू यू प्लान टू सेलिब्रेट विद योर फैमिली? क्या करने वाले हैं? बस दिवाली में तो एक ही बात है, दिवाली के लिए सबको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी। दिवाली इज ऐसा फेस्टिवल है जो इंडियंस का, हिंदू लोग का फर्स्ट सबसे बड़ी फेस्टिवल है। हम लोग, मैं बंगाली हूँ, तो बंगाली में काली पूजा होता है, महाकाली पूजा, तो काली पूजा में जाएंगे रात को, वो मिडनाइट होता है। और थोड़ा सा पटाखा पहले बहुत होता था, क्रैकर, बट नाउ आई हैव रिड्यूस्ड द क्रैकर बिकॉज क्रैकर साउंड एंड दैट पॉल्यूशन इज नॉट गुड, बट दैट्स व्हाई आई जस्ट माई सेल्फ, माई सन बप्पा इज जस्ट सम स्मॉल अनार, ओके। बट घर में मिठाई रहता है, सब लोग आएंगे तो मिठाई खा के जाएंगे बस। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी, उलाला उलाला, मैं तो जवान हो गई। हॉट गाइज एंड कूल बॉयज, ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब नेहा धूपिया खुद बताने जा रही हैं कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए। एक परफेक्ट मैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, सो डोंट वरी, नेहा धूपिया हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे और देंगी कुछ टिप्स। हाय नेहा। हाय नेहा, सबसे पहले बताइए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वेल मेरे हिसाब से एट द टाइम एंड फेज आई एम इन माई लाइफ, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ करेज, कॉन्फिडेंस, camaraderie, integrity, और बहुत ज़रूरी है जो a lot of men don't have the time for and don't look into is grooming. A man should be really well groomed. कोई ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? But I think जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो यही है, अगर ये सब qualities नहीं हो, because none of these things have got anything to do with the way a man looks. It's got everything to do with the way a man behaves or what a man's personality is. So एक personality trait मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी इंसान में, especially when you want to be with the man or you want to make sure that okay this is the person for you. And ये जो qualities हैं अगर ना हो, जैसे आपने पूछा, if the person is not confident or doesn't have the courage or doesn't have integrity or he doesn't shave and you know the whole day he's all scruffy, so you feel like you know these are things you can change in a person. So it's really important that they should have these. आपको लगता है आपकी फैमिली मेम्बर्स जो भी आपके यहाँ गार्जियंस हैं उनको थोड़ा फ़ायदा हो गया होगा आपके लिए एक लड़का ढूंढने में कि ये क्वालिटीज़ रहेंगी तो नेहा एग्री हो जाएंगे? You know, when I was a little girl and my father's a naval officer and I was a little girl and my mom used to be like and my dad used to be like कि आप बड़े हो कि आप किससे शादी करेंगे, क्या बनना चाहते हैं आप, किससे शादी करेंगे? And for me the ideal man would be my father. Like all girls say no I want someone like my father. So and he was a naval officer and मेरे हिसाब से you know soldiers are such a great category to have all these qualities. They have the best personalities, they are you know they just have so much courage, they have so much integrity. Or for me I still say you know that I have a soft spot for men in uniform for sure. So एक नेवल ऑफिसर आई मीन अगर आ जाता है आपके डैड की नज़र में, आपकी नज़र में, तो द परफेक्ट फॉर यू? Be really hard for me to say. अभी आप मतलब अपनी यहाँ पे फिल्म बना रहे हो तो फिर से I don't think so. But really like I really respect men in uniform. Thank you so much. Thank you very much. Airtel Grid Girl के आज के स्पेशल एपिसोड में the girls will be taken to a go-karting track where they will push the pedal to the metal and just let it rip. Well, Airtel Grid के इस स्पेशल एपिसोड को देखना ना भूलिए आज रात 8 बजे।
Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news and gossip and scoops, only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.